हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस करस्पॉन्डेंस। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं बिज़नेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस करस्पॉन्डेंस है क्या। एज वी शेयर आवर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स टू आवर नोन पीपल वाया ओरल और रिटन करस्पॉन्डेंस in general life, likewise business people also feel the need of expressing themselves to their various stakeholders and employees, senior colleagues and junior etc. इस प्रकार से हम लोग अपनी दैनिक जीवन में एक दूसरे को पत्र के माध्यम से एक दूसरे के हालचाल लेते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से बिज़नेस की दुनिया में भी एक बिज़नेसमैन दूसरे बिज़नेसमैन को पत्र के माध्यम से उसके हालचाल पूछता है, बिज़नेस के बारे में जानकारी लेता है, उससे गुडविल बनाने के लिए पत्र लिखता है। तमाम तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर देम टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ देयर एक्सप्रेशन इन द बिजनेस। दे यूज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग written correspondence. A written correspondence in the business world is called a business correspondence, or any communication related to business in the form of the letter is called business correspondence. Any person related to a business expresses oneself through business correspondence. A business requires to serve various purposes to maintain it and run smoothly. For that purpose, a businessman writes and receives letter in his day-to-day life. A correspondence between two organizations or within an organization comes under this category. A letter to a supplier, inquiry letter, complaint letter, order letter, adjustment letter, job application letter are some of its examples. आइए देखते हैं बिजनेस लेटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों लिखा जाता है। A business correspondence is very important as various purposes are served through it. Its most important feature is the ease of reaching and communicating with different parties. It is not always possible to meet persons face to face. A business correspondence helps to meet some organizational goals. One can achieve the objectives through it. Few important roles are mentioned below. अब देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस के। बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि एक बिजनेसमैन का अपने सारे कस्टमर्स के पास पहुंच पाना संभव नहीं होता, इसलिए वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार का सहारा लेता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो देखिए पहला उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1, डेवलप्स एंड मेंटेन्स अ प्रॉपर रिलेशनशिप। The foremost importance of a business correspondence is that it not only develops but also maintains the healthy relations with the people who are directly or indirectly associated with this business. It is not always possible for any business or organization to reach to any person in particular. This will cost any business. Here the business correspondence will be a rescue for any business. It helps in maintaining the proper relationship between the parties. Business correspondence strengthens the business. It also helps in the internal communication. It makes the communication within the organization more clear and precise. दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो उद्देश्य वो है हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। समटाइम्स इन अ बिजनेस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टॉक फेस टू फेस. People think not to indulge in unnecessary arguments. In that scene, written correspondence helps a person to put his point of view in written. तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है inexpensive and convenient. यानी इसमें पैसा कम खर्च होता है और बहुत आसानी से हो जाता है. Every business thinks about the low cost of the product and service, and for that he applies certain rules to stand unshaken in this competitive world. Business written communications serve this purpose as it is a cheap and convenient form of business communication. चौथा जो उद्देश्य है वो है serves as evidence for future reference. Even in this world of science and technology, where new gadgets and techniques are appearing every day on the horizon of the communication, business still rely on written communication, and the reason is that written form of communication serves as evidence
A business correspondence helps the person in a business to keep a record of all the facts and this written record will serve as a evidence. यानी भविष्य में ये आपके लिए एविडेंस का काम करता है, प्रूफ के रूप में काम करता है जो रिटन कम्युनिकेशन होता है. इसलिए हम रिटन कम्युनिकेशन को ज़्यादा रिलायबल समझते हैं. और जो पांचवा पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब बिजनेस कम्युनिकेशन सर्व एज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स. इट मे बी a seller and a buyer. It can be between an employee and employer. The language used is formal and logical. It helps in removing the ambiguity and the doubts of the person involved in the business, and the formal communication in business is followed and acceptable. अगला है create and maintains goodwill. A business runs on word of mouth and goodwill of a company. Written communication helps in creating and maintaining goodwill between a business and a customer. यानी एक बिजनेसमैन के बीच में और एक कस्टमर के बीच में एक अच्छी गुडविल बनाने का काम करता है. एक लेटर, एनी लेटर टू इंक्वायर, कंप्लेंट, सजेशन और फीडबैक्स हेल्प्स अ कंपनी टू ग्रो एंड मेंटेन गुडविल. और जो सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है. अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस हेल्प्स अ बिजनेस टू अचीव द गोल, सेट गोल. It also ensures the expansion of business with no waste of time and proper utilization of manpower and resources. A business can expand any information regarding some resources or any project or market can be easily done. Even the news of the expansion of business can be spread by it. तो ये है इनके उद्देश्य जो मैंने आपको बताया कि इसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, किस किस लिए हम जो रिटन कम्युनिकेशन है करते हैं बिज़नेस में. तो पहला उद्देश्य मैंने बताया कि प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है. ये इनएक्सपेंसिव होता है, कन्वीनियंट होता है, एविडेंस के रूप में काम आता है. ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक गुडविल बनाता है और हमारे बिज़नेस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है. अब आता है कि हम जानेंगे कि कैसे लिखा जाए, फॉर्मेट क्या होता है एक बिज़नेस कम्युनिकेशन करने का, बिज़नेस लेटर लिखने का एक फॉर्मेट क्या होता है. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बिज़नेसमैन पत्र लिखता है अपने कस्टमर को लिखे या किसी दूसरे बिज़नेसमैन को लिखे, तो सबसे पहले टॉप पे हेडिंग लिखी जाती है और हेडिंग में उस बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन, 2 प्रगति रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश. यानी पत्र लिखने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन है. उसके बाद आप देख रहे हैं राइट साइड में एड्रेस डेट पड़ी होती है 1 अगस्त 2019, इस तरह से आप डेट डालेंगे. और लेफ़्ट साइड में रेफरेंस नंबर पड़ा होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग रेफरेंस नंबर होता है, जिसका जो उद्देश्य होता है पत्र लिखने का उसके हिसाब से वो रेफरेंस नंबर होता है, जिसे हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं. उसके बाद फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा होता है उसे एड्रेस करते हैं. उसकी सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन उसे एड्रेस करेंगे, सेल्स मैनेजर, शाइन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, 25 गुलशन, न्यू दिल्ली. देखिए आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसकी कंपनी का नाम और साथ में उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है. उसके बाद बीच में यानी इन द मिडिल बीच में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, विषय. जिस संबंध में हम पत्र भेज रहे हैं उसका विषय लिखेंगे. विषय है एन इंक्वायरी फॉर द प्राइस ऑफ मोबाइल सेट्स, यानी हमें कुछ प्राइस पूछने हैं, मोबाइल सेट हमें मंगाने हैं. एक बिजनेसमैन मोबाइल सेट ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए वो किसी दूसरे होलसेलर को एक पत्र लिख रहा है और उसे इंक्वायर कर रहा है, इंक्वायरी लेटर लिख रहा है, इंक्वायर कर रहा है उसके रेट्स के बारे में. तो देखिए कैसे लिखते हैं. नंबर 1 यहाँ से शुरू करते हैं. सब्जेक्ट के बाद DSO, you are a reputed name in the field of mobile suppliers. In this regard, we would like to see a quotation in which give us detailed information about the Nokia 2100 mobile set recently advertised by you in the Daily Star dated 27 July 2019. अब ये इनको पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो Nokia 2100 का ऐड दिया हुआ है, इस डेट को आपने ऐड दिया है, उस डेट के उसके संबंध में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ. We are impressed by the description of the respective mobile set as advertised by you and expected to purchase it if terms and conditions are found to be suitable. और हम अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके हमें सूटेबल लगते हैं तो हम वो परचेज़ करना चाहते हैं आपसे. Our annual requirement of such set is around 2000 pieces. मैंने बताया कि हम अपनी शॉप पर
लगभग 2000 जो सेट हैं वो आपके बेच सकते हैं हर साल. As we handle a lot of mobile sales each year, we hope and trust you will quote the most favorable prices and terms. चूँकि हम ज़्यादा मात्रा में मोबाइल सेट बेचते हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रेट्स हमें भेजेंगे. योर्स फेथफुली विक्रम सिन्हा, प्राइस परचेज मैनेजर. अब देखिए यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला है ये कौन है? स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन का परचेज़ मैनेजर है जो पत्र लिख रहा है. किसको लिख रहा है पत्र लिखा जा रहा है शाइन टेलीकम्युनिकेशन को. तो यहाँ पर लास्ट में लेफ़्ट साइड में योर्स फेथफुली लिखेंगे और पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे और नीचे उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे. तो ये था पत्र. इसे कहते हैं इंक्वायरी लेटर, यानी कि हम एक पत्र भेजते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करते हैं और उनसे कोटेशन मांगते हैं. अब आइए दूसरा देखते हैं हम कि इंक्वायरी लेटर के बाद जो बिज़नेसमैन है वो कोटेशन लेटर भेजता है. तो कोटेशन लेटर कैसे लिखा जाता है? अब जिसको पत्र भेजा है यानी शाइन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, वो पत्र लिख रहा है स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन को. और कैसे लिख रहा है? सबसे पहले देखिए, फिर वही इन द मिडिल आप देखेंगे हेडिंग लिखी हुई है बीच में सबसे टॉप पर, शाइन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड 25 गुलशन न्यू दिल्ली. और राइट लेफ़्ट साइड में देखिए डेट पड़ी हुई है. तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे टॉप पर, उसके बाद लेफ़्ट में हम लिखेंगे रेफरेंस नंबर और राइट में लिखेंगे डेट. और अब किसको लिखेंगे? द मैनेजर, परचेज डिवीज़न, स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन, 2 प्रगति रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश. अब इनको हम पत्र लिख रहे हैं और इसका सब्जेक्ट क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर नोकिया 2100. जी DS सो थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी ऑफ 1 August 4. वी आर ग्लैड टू इनक्लोज द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ नोकिया 2100. अब इन्होंने देखिए सारे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, अपने कोटेशन कोट कर रहे हैं. सेट लिखा है, कौन सा सेट है, कैटेगरी नंबर क्या है, बैटरी कैसी है, कलर कैसा है, प्राइस कैसा है और वारंटी क्या है. ये सारी चीज़ें एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने मेंशन की. उसके बाद देखिए देखते हैं आर नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट इज़ 15%. इसमें हम जो हमारा कोटेशन लेटर होता है उसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्काउंट आदि सब मेंशन करते हैं. तो इसमें लिखा है आर नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट इज़ 15% फॉर 10 days and 5% extra if the order is made for more than 1000 pieces at a time. We do supply to our customers door through our own care. Our mobile is originally imported with intact packing and we provide a guarantee for our mobile set for 3 years. और इन्होंने ये भी बता दिया कि हम अपने मोबाइल जो हैं वो लगभग 3 years की इसमें गारंटी देते हैं. And if you need any further details to meet your customer requirements, you should feel free to write to us. और कहते हैं कि अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. If you need any further details to meet your customer requirements, you should feel free to write to us. Yours faithfully. देखिए लेफ़्ट साइड में विभस मल्होत्रा सेल्स मैनेजर हैं. ये कहाँ के हैं? शाइन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के हैं. यहीं पत्र लिखने वाला जो कंपनी कोटेशन भेज रही है उसके ये सेल्स मैनेजर है. तो इस तरह से उन्होंने कोटेशन लेटर भेजा. अब पहला हमने डिस्कस किया इंक्वायरी लेटर, दूसरा डिस्कस किया हमने कोटेशन लेटर. अब आइए देखते हैं हम तीसरा है ऑर्डर लेटर. अब हमने जब कोटेशन प्राप्त कर लेते हैं और हमें रेट उसके रीज़नेबल लगते हैं और हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस है, जो रेट्स हैं वो सही हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सही है, तो हम क्या करते हैं? फिर ऑर्डर करते हैं. देखते हैं ऑर्डर कैसे करते हैं. फिर फॉर्मेट सेम रहेगा, यानी जो कंपनी ऑर्डर कर रही है उसमें टॉप पर सबसे पहले उसका एड्रेस लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पर लिखा है शॉप नंबर 15 न्यू मार्केट गाज़ियाबाद. और ये कौन लिखने वाले हैं? कलर वर्ड. ये कंपनी का नाम है कलर वर्ड. और ये कहाँ पर है? शॉप नंबर 15 न्यू मार्केट गाज़ियाबाद 1200. फिर अगेन वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. ये लेफ़्ट साइड में हम रेफरेंस नंबर लिखेंगे और राइट साइड में डेट लिखेंगे और लिखेंगे द मैनेजर सेल्स डिवीज़न पेंट वर्ड जागृति कॉलोनी सराय दिल्ली. ये उसका एड्रेस है. किस बात के लिए हम उनको ऑर्डर कर रहे हैं? ऑर्डर फॉर पेंट्स. हमें कुछ पेंट्स चाहिए जिसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं. डियर सर, थैंक यू फॉर योर कोटेशन एंड द प्राइस लिस्ट. वी आर ग्लैड टू प्लेस आवर फर्स्ट ऑर्डर विद यू फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. अब देखिए नीचे उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है क्या क्या कौन कौन से पेंट चाहिए
एक पूरी टेबल के फॉर्म में उन्होंने बना दिया, जिसमें पहला है पॉइंट डिस्क्रिप्शन, दूसरा है क्वांटिटी, तीसरा है वेट और चौथा है यूनिट प्राइस और अमाउंट। सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ये 3 प्रकार के पेंट्स का, उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं इसमें। और लिखते हैं सिंस द अबव गुड्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली एज आवर स्टॉक इज़ अबाउट टू एग्जॉस्ट वेरी सून, वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड द गुड्स थ्रू योर मोटर वैन एज द कैरेज इनवर्ड इज़ सपोज टू बी बॉर्न बाई यू टिल 30 नवंबर 2019। और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्वयं हमें अपने व्हीकल से ये सारा सामान भेजें, ठीक है, क्योंकि आपने अपने कोटेशन में ये मेंशन किया है कि आप स्वयं पहुंचाएंगे, इसका जो खर्च है वो आप स्वयं वहन करेंगे, इसलिए आपको ये हमें पहुंचाना होगा। प्लीज़ सेंड ऑल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद गुड्स, वी रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ़ रिसीव्ड लेट। साथ साथ ये अपनी कंडीशन बता देते हैं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो समय पर नहीं पहुंचता है तो हम आपको ऑर्डर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। योर्स फेथफुली दुष्यंत वर्मा, परचेज मैनेजर, कलर वर्ल्ड। तो ये था एक ऑर्डर लेटर, तो ऑर्डर लेटर लिखने का तरीका। अब अगर मान लीजिए हमने ऑर्डर किया है और ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जो माल सप्लाई होता है या जो आपको प्रोडक्ट भेजा जाता है होलसेलर के द्वारा, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो हम क्या लिखते हैं फिर लिखते हैं हम कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर किस तरह से लिखा जाता है तो देखते हैं। अगला हम एग्जांपल देते हैं कंप्लेंट लेटर, जो कि ये है, सपोज़ यू हैव रिसीव्ड 1000 कार्टन्स ऑफ ट्यूब लाइट बट 50 कार्टन्स ऑफ देम आर डैमेज्ड, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द सप्लायर स्टेटिंग द फैक्ट एंड आस्क फॉर ए क्विक रिप्लेसमेंट। तो आप देखिए, आपने 1000 कार्टन्स मंगाए थे, जिसमें 50 ख़राब निकल गए ट्यूबलाइट के, तो आप कैसे कंप्लेंट लेटर लिखेंगे? तो अगेन वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले टॉप पे देखिए उस कंपनी का नाम जो पत्र भेज रही है, ब्राइट लाइट शॉप, गढ़ रोड, बेगम मार्केट, मेरठ, ये उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद लेफ़्ट साइड में देखिए रेफरेंस नंबर लिखा है और राइट साइड में डेट लिखी हुई है। द मैनेजर, सेल्स डिवीज़न, ग्लास एंड लाइट एम्पोरियम, दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कंप्लेंट फॉर गुड्स रिसीव्ड इन अ डैमेज कंडीशन। यानी जो आपने हमें गुड्स भेजा है, सामान भेजा है, वो डैमेज हमें कुछ मिला है, कुछ उसमें ख़राबियाँ हैं, ठीक है। कंप्लेंट हम तब लिखते हैं जब हमारा जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, जो माल प्राप्त हुआ है, वो या तो डैमेज हो या उसमें कुछ कमी हो जाए या कोई टूटा फूटा हो जाए, या जो हमने ऑर्डर किया था वो ना होकर कुछ और हो जाए, या हमने जितनी क्वांटिटी मांगी थी उतनी क्वांटिटी ना आकर के हमें कम मिले, या कोई और समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हम कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। डियर सर, many thanks for your prompt delivery of the ordered tube lights. Unfortunately, on opening the carton, we found 10 cartons of tube lights in damaged condition. We are now sure whether the damage has been caused by poor handling or wrong packing. While placing the order, I clearly mentioned that we required these goods quickly and to be handled with care while delivery. Although we received such goods in time, but 50 cartons of damaged goods caused serious problem to the need of our valued customers. Please take back the 10 cartons of damaged goods and provide replacement before 20 April to enable us to satisfy our customers' needs. We are looking forward to hearing from you with the said replacement. Sincerely yours, Brahmadat, Purchase Manager. इस तरह से उन्होंने कंप्लेंट लिखी कि आपने किस प्रकार से जो हमें गुड्स भेजा था उसमें हमारा इतना माल जो है वो डैमेज हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये 10 कार्टन्स अपने वापस लें और हमें तुरंत जो हमारा माल था वो सही कंडीशन में हमें दें, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सकें। तो ये है बिज़नेस लेटर लिखने का तरीका। और बिज़नेस लेटर लिखते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि हम जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें वो बहुत ही कर्टियस होनी चाहिए। भाषा में कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा डीलर है, वो अपने आप को ऑफेंडेड महसूस करे, उससे हर्ट हो। तो इसलिए हम जो हमारे शब्द हैं वो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे और बहुत ही कर्टसी का यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो बिज़नेस रिलेशंस हैं वो हमेशा के लिए बने रहें और हमारा बिज़नेस आगे तक चलता रहे। तो ये था आज हमारा टॉपिक बिज़नेस करेस्पॉन्डेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।